Good morning, students. In this video, we will start Bohr's atomic model and its application. It's a very important model, and Bohr has given us so many things, so many formulas. Actually, I must say, he has given to us. You have to learn all that formulas because that all formulas are very important in your numericals. So these all things we have already aware that proton, neutrons and electrons, three things have been invented, three particles have been invented in the atom. Protons have a positive charge and electrons have a negative charge. Both are having the same charge, that is plus 1.602 into 10 to the power minus 19 and minus 1.602 into 10 to the power minus 19. So it means the magnitude of both the charges is same, only the signs are different, and that too the opposite charges. And neutron do not have any charge, that is why atom is neutral in nature. Relative charges are plus 1 and minus 1. Masses, protons masses 1.6727 into 10 to the power minus 27, and electrons masses 9.1095 into 10 to the power minus 31, which is very less than the mass of proton. Mass in AMU is 1.0073 of proton, and 5.4858 into 10 to the power 4 of electron. And neutron also have approximately same mass as of proton, that is 1.0087. The mass of nucleus depends upon the mass of protons and neutrons, that is actually the sum of mass of protons and neutrons. Protons are found in nucleus, neutron is also found in nucleus, and electrons revolve outside the nucleus. About it we all are aware, we have already studied in the previous videos. Now we know that the Rutherford has proposed the model, that is planetary model of atom. What it means, that planetary model of atom, that actually Rutherford has analogous his model to the solar system. He has compared the nucleus with the sun and the electrons to the planets. He has said that like planets revolves around the sun, the same way electrons revolves around the nucleus. The planets revolve around the nucleus because of the gravitational force, because earth attract the planets towards it due to the gravitational force, and that gravitational force only the planets use in revolving around the sun. Okay, so what Rutherford has said about his model, he has said that electrons have the negative charge and nucleus has a positive charge. So there is electrostatic force in between, or electrostatic force in between the nucleus and electrons, and this electrostatic force the electrons use in revolving around the nucleus. So he has said that both the things are same, but what happened, there is an important difference between the solar system and the nucleus model. So what is that difference? The difference is that electrons have extremely small mass and are negatively charged particles. The electrons are negatively charged particles, whereas planets are massive and they do not have any charge, they are neutral. Now the question arises that because Clerk Maxwell was a scientist, what he has said, that when a charged body moves under the influence of attractive forces, because in nucleus and electrons there are attractive forces, electrostatic forces are there, so they are attracting to each other. So what he has said, that a charged body when move under the influence of attractive forces, it loses energy continuously in the form of electromagnetic radiation. So it means when electrons are revolving around the nucleus, they should emit some radiations, clear, because electron is also a charged particle, and in between the electron and nucleus also there is what attractive forces, so it should emit the energy. And when it is emitting the energy, what will happen? Unlike a planet, the electron is a charged body and it is emitting the energy. So as a result, the electron should lose the energy at every turn, no, and move closer and closer to the nucleus. हर बार जब वो energy radiate करेगा तो it should come close to the nucleus. Why? Because its energy is less now, and the energy of nucleus is not decreasing, it's same. तो एक चीज़ की जब एनर्जी कम हो जाती है और दूसरे की, लाइक टग एंड वॉर में अगर एक साइड एनर्जी कम हो रही है और दूसरी साइड एनर्जी उतनी की उतनी है खींचने की, तो जो एनर्जी जिसकी ज़्यादा है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा,
है ना. तो द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज सेम बट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग बिकॉज इट इज़ रेडिएटिंग द एनर्जी. सो ये ज़्यादा पास 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 आता चला जाएगा न्यूक्लियस के, एंड अल्टीमेटली इट शुड फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना. ऐसा होना चाहिए. और ऐसा अगर हो जाता है तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो तो गया, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, है ना. बट ऐसा होता नहीं है, इट नेवर हैपन्स. वो अलग बात है, इट नेवर हैपन्स. बट रदरफोर्ड ने यही बोला था और मैक्सवेल ने उसकी थ्योरी को बोल दिया कि ये जो है ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज अगर ऐसा है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक planets revolves around the earth or the earth revolve around the sun, so it should fall off because it is charged. वो planets इसलिए नहीं गिरते और earth इसलिए नहीं गिरता because they are not charged, तो they are not emitting the energy because but इलेक्ट्रॉन इज चार्ज, तो ये एनर्जी एमिट करेगा और अल्टीमेटली इसको फॉल हो जाना चाहिए. इसलिए ये जो इसका मॉडल है दैट इज़ नॉट राइट. तो इसके मॉडल को जो है ये इसका एक ड्रॉबैक था, इसको कैंसिल कर दिया गया. उसने ये बोला कि नहीं, आप इसको इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, आप सोलर सिस्टम को और एटम के मॉडल को कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स होते हैं, जो अर्थ होता है, वो चार्ज नहीं होता है और वो एनर्जी एमिट नहीं करता है. बट इलेक्ट्रॉन्स चार्ज हैं, वो एनर्जी एमिट करेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए और धीरे धीरे उनकी एनर्जी कम होगी और उन्हें न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए. क्लियर. तो ये उसका एक ड्रॉबैक था. दूसरा ड्रॉबैक क्या था उसका? दूसरा ड्रॉबैक था उसका कि रदरफोर्ड कुड नॉट, एक तो वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया था. दूसरा, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन डेफिनेट लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज़ करेगा तो लाइट एमिट करेगा, और जब लाइट एमिट होती है या किसी प्रिज्म से फॉल होती है तो वो एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करती है. कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब ये सारी की सारी लाइंस उसमें आनी चाहिए, वो वेबग्यूअर वाली, वो जो आप रेनबो में देखते हो. बट हाइड्रोजन जो है वो इस तरीके से जब लाइट उसके ऊपर पड़ रही है तो वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बना रहा, वो एक एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा है. यानी कोई कोई लाइट हमें नज़र आ रही है और कोई कोई लाइट हमें नज़र नहीं आ रही है. तो रदरफोर्ड जो है वो इसे ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम था, इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जिसे बाकी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था. तो उसका जो मॉडल था ना, तो वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पा रहा था, ना ही ये एक्सप्लेन कर पा रहा था कि एटम जो है कैसे स्टेबल है जबकि इलेक्ट्रॉन्स को तो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए. इन दोनों चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. ऑल्दो देयर वर सम अदर स्मॉल ड्रॉबैक्स ऑल्सो, बट ये जो थे ये दोनों उसके मेजर ड्रॉबैक थे जिन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से रदरफोर्ड जो है उसकी थ्योरी, उसका जो मॉडल है, उसको आगे अप्रूवल नहीं मिला. और इन सारी चीज़ों को, ये जो सारे ड्रॉबैक्स थे, इनको ओवरकम करने के लिए रदरफोर्ड के मॉडल के नील्स बोहर एक फिजिशियन थे, एक साइंटिस्ट थे. 1913 में उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के ऊपर बेस्ड था. अभी हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी इसके बारे में क्या था रेडिएशन का थ्योरी, तो उसके ऊपर वो बेस्ड था. तो ये जो मॉडल था, दिस इज़ अ न्यू मॉडल ऑफ बोहर्स मॉडल, जिसमें उसने हमें बहुत सारी बातों के बारे में बताया, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर किए और उसके लिए उसे नोबेल प्राइज़ भी मिला इन 1922. तो अब बोहर ने क्या बोला? बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट एनर्जी लेवल्स विच आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स और शेल्स इन एन एटम विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी. अब उन्होंने अपनी ही बात बोली, उन्होंने मैक्सवेल और आइंस्टीन सबको फेल कर दिया, सबकी जो थ्योरीज थी उनको किनारे पे रख दिया. उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है. एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हेवी चार्ज न्यूक्लियस एंड एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर पाथ, जिन्हें हमने ऑर्बिट्स का नाम दिया और इन्हें एनर्जी लेवल भी बोला. और उसने बोला कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या बोला था? मैक्सवेल ने बोला था कि एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज पार्टिकल है और वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, एमिट करेगा, लूज़ करेगा. लेकिन उसने क्या बोला कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट. जब तक कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी शेल में या एक ऑर्बिट में घूमता रहता है, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता. यानी कि ये जो जितने भी यहाँ ऑर्बिट्स बने हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो ऑन द स्क्रीन, n = 1, n = 2, n = 3, ये 1, 2, 3 ये क्या है? दीज आर द ऑर्बिट्स. ये नंबर दे दिया हमने इसको. न्यूक्लियस के सबसे पास जो ऑर्बिट है दैट इज़ 1, फिर 2 एंड L. इन्हें आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, KLM नाम भी दिए गए थे इन्हें. तो दीज आर द एनर्जी शेल्स.
उसने क्या बोला कि हर एनर्जी शेल का, यानी के का अपना, एक एल का अपना, एम का अपना एनर्जी होगा और वो फिक्स होगा, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। और इलेक्ट्रॉन जब तक किसी एक पर्टिकुलर शेल में रहता है तो उसकी एनर्जी स्टेशनरी रहती है, कोई चेंज नहीं आता। इसलिए इन एनर्जी शेल्स को हम स्टेशनरी एनर्जी शेल्स भी कहते हैं। लाइक हमने इन्हें सर्कुलर पाथ बोला, ऑर्बिट बोला, एनर्जी शेल बोला, और अब हमने बोल दिया कि ये स्टेशनरी एनर्जी शेल्स हैं। तो जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, और जब एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा तो उसका धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास जाने का और उसमें गिरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को उसने एक्सप्लेन करा। ठीक है, तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, वो इस तरीके से उसने कैंसिल कर दिया, इस तरीके से उसने उसको खारिज कर दिया और बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी को लूज़ करता ही नहीं है। As long as electron remains in a shell, it never gains or lose energy. जब तक वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा ना तो वो एनर्जी गेन करेगा ना ही वो एनर्जी लूज करेगा। बट ऑन द अदर हैंड क्या बोला उसने कि हर एक ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स है, और जितने पास होगा न्यूक्लियस के ऑर्बिट या शेल उसकी एनर्जी उतनी कम है। जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। मतलब जो फर्स्ट शेल है उसकी एनर्जी अगर हम मान लें कि 2 किलो जूल है, मान लेते हैं, इट्स जस्ट एग्जाम्पल। तो सेकंड वाले की 3 होगी, उसके उससे नेक्स्ट वाले की 4 होगी, उससे नेक्स्ट वाले की 5 होगी, उससे नेक्स्ट वाले की 6 होगी। यानी जितना जितना न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे उतना शेल्स की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक एनर्जी शेल से दूसरे एनर्जी शेल में जंप करता है, लाइक फ्रॉम 1 to 2, तो इट विल गेन द एनर्जी, इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी। ठीक है, और कितनी एनर्जी चाहिए होगी उसे, जितना उन दोनों में एनर्जी डिफरेंस है। लाइक मैंने आपको बोला कि फर्स्ट वाले ऑर्बिट की जो एनर्जी है सपोज 2 किलो जूल है, और सेकेंड वाले की सपोज 3 किलो जूल है, सपोज है। ये एक बहुत बकवास सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, बट इट इज़ एन एग्जाम्पल ओनली। 2 किलो जूल है एंड सेकेंड वाले की 3 किलो जूल है, तो दोनों में एनर्जी डिफरेंस कितना है, 1 किलो जूल। तो इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन को सेकेंड से थर्ड वाले शेल में, थर्ड वाले ऑर्बिट में जंप करना है तो उसे 1 किलो जूल की एनर्जी चाहिए। ठीक है, और ये एनर्जी वो एक पैकेट्स की फॉर्म में लेता है, यानी एनर्जी के पैकेट आते हैं कि 1 एनर्जी का आएगा या 2 का आएगा या 3 का आएगा, वो हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं, और उसको पता होता है कि अगर उसे किस एनर्जी शेल में जाना है उसके हिसाब से वो उतने पैकेट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एंड द सेम वे व्हेन इट विल कम बैक, अगर वो सेकेंड एनर्जी शेल में है, सेकेंड वाले ऑर्बिट में है और उसे फर्स्ट वाले ऑर्बिट में आना है, तो उसे अपनी एनर्जी को, उतनी ही एनर्जी को, जितना उनमें एनर्जी डिफरेंस है उतनी एनर्जी को लूज़ करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उतनी एनर्जी को लूज़ करना पड़ेगा, और वो जो एनर्जी जो वो लूज़ करेगा दैट इज़ इक्वलेंट टू HV। कितनी एनर्जी गेन करेगा और कितनी एनर्जी लूज़ करेगा, दैट इज़ इक्वलेंट टू HV, वेयर एच म्यू क्या है ये यहाँ पर, दैट H यहाँ पर है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज़ 6.6 इंटू 10⁻34। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, आई विल टेल यू देयर। बट अभी मैं आपको बता दूं कि H जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये एक कांस्टेंट है। लाइक पाई की वैल्यू फिक्स होती है ना 3.14, इसी तरीके से ये भी एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, दैट इज़ 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है इसकी ये फिक्स रहेगी हर एक कांस्टेंट उसके लिए। एंड द अनदर थिंग इज़ म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे कि क्या नेचर होती है इसकी। अभी आप इतना याद रखिए कि एनर्जी कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए, दैट इज़ इक्वलेंट टू एच म्यू के बराबर उसको एनर्जी चाहिए। एब्जॉर्ब करेगा या तो वो एनर्जी इतनी, और या फिर इतनी एनर्जी को वो एमिट करेगा एक शेल से दूसरे शेल में आने के लिए। ठीक है, फिर उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूमते तो हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, बट उन्हीं के चारों तरफ घूमते हैं, उन्हीं शेल्स में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिन शेल्स का एंगुलर मोमेंटम दैट इज़ MVR इज इक्वलेंट टू NH/2π, और इट इज़ द मल्टीपल ऑफ NH/2π। देखो स्टूडेंट्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप इसके बेस पर करने वाले हो। थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ क्या है ये एंगुलर मोमेंटम। देखो कोई चीज़ जब रिवॉल्व करती है, जब वो घूमती है ना, तो उसका एक मोमेंटम होता है। मोमेंटम के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा है, हम ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में बात नहीं करेंगे बिकॉज
एक्चुअली ये फिजिक्स का टॉपिक है, बट कोई चीज़ जब घूमती है तो उसका जो मोमेंटम होता है दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम विच इज़ डिपेंड अपॉन द मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। लाइक अगर एक चीज़ घूम रही है और जिस पाथ पर घूम रही है, जिस सर्कल में वो घूम रही है, जिस ऑर्बिट में वो घूम रही है, उसका रेडियस है r, और वो जो चीज़ घूम रही है उसका मास है m, और उसकी जो वेलोसिटी है वो है v, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ इक्वलेंट टू mvr। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर हो, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 है या नंबर ऑफ शेल 1 है तो n की वैल्यू 1 होगी, नंबर ऑफ शेल 2 है तो n की वैल्यू 2 होगी, नंबर ऑफ शेल 3 है तो n की वैल्यू 3 होगी। h जैसे कि मैंने आपको बताया इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.6 इंटू 10⁻34, एंड पाई यू नो दैट इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 3.14। तो इसका मतलब क्या है कि MVR जो है यानी जो एंगुलर मोमेंटम है वो हर शेल का फिक्स होगा, बिकॉज जो फर्स्ट शेल है उसके लिए n तो हमेशा 1 ही रहेगा, h हमेशा 6.6 इंटू 10⁻34 ही रहेगा, और पाई हमेशा 3.14 ही रहेगा। तो अगर आपको फर्स्ट शेल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो इट इज़ 1 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 2 इंटू 3.14। अगर आपको सेकेंड वाले का निकालना है तो इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू h/2π, दैट इज 2 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 2 इंटू 3.14। तो इस तरीके से हर शेल का एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होगा। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि अगर आप क्लास में आए हैं तो आप क्लास में किसी भी सीट पर कहीं पर भी बैठ सकते हैं, पूरी क्लास आपकी है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास कहीं भी घूम सकता है। लेकिन इसने क्या बोला कि नहीं, आपके लिए पर्टिकुलर कुछ सीट्स रखी गई हैं और आप उन्हीं सीट्स पर बैठ सकते हो, आप किसी भी सीट पर जाकर नहीं बैठ सकते। आप उसी सीट पर बैठ सकते हो जिस सीट पर नंबर लिखा हो, और वो नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। आप 1.5 वाले नंबर पे नहीं बैठ सकते, आप 1.3 वाले नंबर पे नहीं बैठ सकते। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम या तो h/2π हो या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जहाँ पर भी घूम रहा है, जिस भी ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी फिक्स है, और जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स है। तो इसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब सेम एनर्जी और सेम एंगुलर मोमेंटम। तो उसने क्वांटाइज्ड कर दिया, उसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जहाँ घूमेगा जिस ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हुए ना तो वो एनर्जी को लूज़ करेगा ना एनर्जी को गेन करेगा। अगर वो एनर्जी को लूज़ और गेन करता है तो उसे अपना ऑर्बिट चेंज करना पड़ेगा। लाइक अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में चले जाते हो, नेक्स्ट क्लास में चले जाते हो, सेकंड से आप थर्ड में चले जाते हो, थर्ड से फोर्थ में चले जाते हो, फोर्थ से फिफ्थ में चले जाते हो, है ना। लेकिन आप सेकंड से 2.5 कोई क्लास नहीं होती, वहाँ नहीं जा सकते आप, है ना। आप सेकंड के बाद थर्ड में ही जाओगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट के बाद आपको सेकंड में ही जाना पड़ेगा। और अगर आपको सेकंड में जाना है तो आपको मिनिमम 33% मार्क्स लेने ही पड़ेंगे, यानी उन दोनों में जितना एनर्जी गैप है आपको उतना एनर्जी गैप को एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा, और अगर वापस आना है तो उतनी एनर्जी को रिलीज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें उसने बोली। क्या क्या बोला, दोबारा आई एम रिपीटिंग। एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हेवी चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर पाथ which are called as orbits or energy levels. Energy of an electron in an orbit does not change with time. It's stationary until and unless it do not jump from one orbit to another. जब तक एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाएगा उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, और जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो उसे कितनी एनर्जी लेनी पड़ेगी। लाइक अगर हम बोले कि डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यहाँ E2 क्या है, सेकेंड वाले एनर्जी शेल की एनर्जी, और जिस शेल में वो है उसकी एनर्जी कितनी है, E1। तो इसका मतलब E2 माइनस E1 दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा ई। इतनी एनर्जी उसे एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी अगर उसे हायर लेवल में जाना है, और अगर हायर से लोअर लेवल में वापस आना है तो इतनी एनर्जी उसे एमिट करनी पड़ेगी। देन ओनली इलेक्ट्रॉन विल बी एबल टू चेंज इट्स ऑर्बिट, अदरवाइज वो जब तक एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक वो अपनी एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, फिर उसने बोला ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। सिर्फ वही वाले ऑर्बिट्स जो हैं परमिसिबल है, या ये कहो कि उन्हीं वाले ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो।
ये सारी बातें उसने कही। तो अब उसको क्या सक्सेस मिली इससे? यस, तो सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल क्या था, उसने हमें क्या क्या दिया? उसने हमें ऑर्बिट के रेडिएशन के बारे में बताया, उसने एनर्जी के बारे में बताया, और उसने वेव नंबर के बारे में बताया। ठीक है, तो ये सब उसके डेरिवेशंस हैं। डेरिवेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, आपको कभी भी डिराइव करने के लिए फॉर्मूलाज नहीं आते, बट हाँ फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, बिकॉज यू पीपल हैव टू यूज़ दीज फॉर्मूलाज इन योर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बोहर ने सबसे पहले क्या बोला? इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया कि एटम जो है वो स्टेबल क्यों रहता है, बिकॉज जब तक वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है वो कोई भी एनर्जी एमिट करता ही नहीं। ठीक है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों के पास क्या है? अपोजिट चार्जेस हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उनके बीच में, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में उसको यूज़ करता है इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ घूमने में। और क्योंकि ये एनर्जी ना तो कम हो रही है ना बढ़ रही है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इसलिए वो कॉन्टिन्यूस घूमता रहता है। ठीक है, समझ में ही बात? फिर क्या बोला उसने? डेरिवेशन दिया हमें, बोला कि देखो जैसे ये है हमारा, दिस इज सपोज एटम, तो बीच में ये जो जेड है दैट इज ए न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू जेड इंटू ई। क्लियर? जेड मतलब एटॉमिक नंबर, और ई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो जितने भी इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे, है ना, उसको जेड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है? सपोज ए, सपोज ई। ठीक है, तो जेड प्रोटॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा? जेड ई। तो न्यूक्लियस के अंदर तो चार्जेबल तो सिर्फ कौन है? प्रोटॉन्स ही हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं न्यूक्लियस के अंदर, बट उनके ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं। तो जो न्यूक्लियस का चार्ज है दैट इज डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उतना ही चार्ज होगा न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस का चार्ज सपोज जेड ई है, और जो हमारा एटम है उसका रेडियस मान लेते हैं आर है, और जो इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ घूम रहा है उसका जो मास है दैट इज़ एम, और जब भी वो घूमेगा उसमें की वेलोसिटी जो है वी है। वेलोसिटी कॉन्टीन्यूसली उसकी चेंज होती रहेगी बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। ठीक है ना, तो हम कंसीडर करते हैं कि एक एटम है, इलेक्ट्रॉन है हमारा एक ई, नॉट एटम सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन है ई जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। न्यूक्लियस पे चार्ज है जेड ई, वेयर जेड इज़ द एटॉमिक नंबर एंड ई इज़ रिप्रेजेंटिंग द चार्ज। मास जो है वो दैट इज़ द एम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के मास को। आर जो है वो रेडियस है ऑर्बिट का, और वी जो है दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो इन सब चीज़ों को उसने लेट करा, सपोज करा, और उसके बेस पर उसने अपना फॉर्मूलाज डिराइव करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बात करें? सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम हमने क्या बोला कि एम वी आर इज इक्वल टू एच अपॉन टू पाई, है ना। एम वी आर इज इक्वल टू एच अपॉन टू पाई, where m is the mass, v is the velocity, r is the radius, h is the Planck's constant and pi is also the Planck's constant। तो ये तो फॉर्मूला हमारा फिक्स हो गया कि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन अपॉन एन इंटू एच अपॉन टू पाई। इसी से अब हम रेडियस निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, है ना, बाद में डिराइव करें किया उसने, हमें वो डेरिवेशन नहीं करना है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, एनर्जी कितनी है? उसने बोला कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यानी ई एन, एन रिप्रेजेंट्स फॉर नंबर ऑफ शेल, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि हर शेल की एनर्जी अलग होगी, तो हर शेल की एनर्जी हमें अलग अलग निकालनी भी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, बोहर ने जितना भी कुछ बताया था ना वो हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया था। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यानी जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी के बारे में बताया था। तो यहाँ पर हम उसी की बात कर रहे हैं। ये उसका एक ड्रॉबैक था, हालांकि बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि बोहर ने जितनी भी हमारे को चीज़ें दी, जितनी भी थ्योरीज दी, जितना भी ये एक्सप्लेनेशन दिया, वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही दिया था। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जहाँ पर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, ये उसका एक फेलियर भी था। तो खैर उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो एनर्जी ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच वन अपॉन एन स्क्वायर, वेयर आर एच इज़ रेडबर्ग कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 109,677 एंड आर एच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो आपकी स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहा है, पाई इसमें कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। m दैट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ ऑल्सो फिक्स। ठीक है,
अच्छा, n यानी नंबर ऑफ शेल, हर शेल की अलग अलग एनर्जी है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर शेल की एनर्जी निकालने के लिए n की वैल्यू भी फिक्स होगी। h एज आई हैव टोल्ड यू दैट इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, वो भी फिक्स है। ठीक है, e इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले, हमें पता है वो भी फिक्स होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। मास इलेक्ट्रॉन का फिक्स होता है 9.109394 इंटू 10⁻31। तो ये जो ई एन के सामने जो मैंने फॉर्मूला लिखा है -2π² me4 z² अपॉन n² h², यहाँ सारी वैल्यूज़ फिक्स हैं, सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इन सब की वैल्यू कॉन्स्टेंट उसने रखी और उसको कैलकुलेट किया पूरा, क्योंकि हमें ये पूरा इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं रखना है। तो अल्टीमेटली उसने एनर्जी के लिए फॉर्मूला निकाल लिया। एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया हमारे पास, ई एन इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन n²। z² क्या है, z इज़ द एटॉमिक नंबर। अगर हम, जैसे मैंने आपको बोला कि बोहर ने बात की थी हाइड्रोजन की ज़्यादा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो अगर हम हाइड्रोजन का एनर्जी निकाल रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर शेल का, तो z लिखना ऑप्शनल है, बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। लेकिन अगर हाँ हम किसी और शेल की एनर्जी निकाल रहे हैं, लाइक हीलियम की निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें उसका एटॉमिक नंबर मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 नहीं होता, तो 1 वो मेंशन करना ज़रूरी होगा। बट अदरवाइज़ अगर हम हाइड्रोजन की एनर्जी निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ई एन इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन n² हमारे पास नंबर ऑफ शेल है कि कौन से शेल की एनर्जी हम निकाल रहे हैं। एंड इस फॉर्मूला से जो हम एनर्जी निकालेंगे उसका यूनिट होगा अर्ज पर एटम। बट ज़्यादातर हम जो एनर्जी निकालते हैं वो जूल में निकालते हैं, जूल पर एटम। तो जूल पर एटम में अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -21.8 इंटू 10⁻⁻19, 12 की जगह 19 हो जाएगा अपॉन n²। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ईवी में निकालना चाहते हैं एनर्जी को, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई एन इज इक्वल टू -13.6 z² अपॉन n²। ठीक है, जूल पर एटम में हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूला को -2.18 इंटू 10⁻⁻18, 19 की जगह 18 कर दो और 21.8 की जगह 2.18 कर दो, z² अपॉन n², दैट इज़ जूल पर एटम। और अगर किलो जूल पर मोल में निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई एन इज इक्वल टू -13.2 इंटू z² अपॉन n²। एज आई हैव टोल्ड यू, अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो z जो है वो दैट इज़ ऑप्शनल। So on the basis of this Bohr's formula we can calculate the energy of any particular shell। like अगर हमें फर्स्ट शेल की एनर्जी निकालनी है, मान लीजिए 1, जो फर्स्ट वाला शेल है हाइड्रोजन का, उसकी एनर्जी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, ई एन इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 अपॉन n² की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। अगर हमें सेकेंड वाले शेल की एनर्जी निकालनी है तो ई एन इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाय 1² अपॉन 2²। तो ऐसी किसी भी शेल की आप एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी निकालने की ज़रूरत क्यों है हमें, बिकॉज अगर एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर रहा है तो हमें दोनों शेल्स की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, देन उन दोनों शेल्स की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि दोनों शेल्स की एनर्जी में कितना डिफरेंस है और इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी या एमिट करनी पड़ेगी किसी भी एक पर्टिकुलर शेल से दूसरे पर्टिकुलर शेल में जाने के लिए। सो आप अभी फ़िलहाल फॉर्मूला याद करिए, डेरिवेशंस पे ध्यान मत दीजिए, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। आप ये याद रखिए कि बोहर ने हमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया था, दैट इज़ अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी भी पर्टिकुलर शेल का तो mvr इज इक्वल टू NH/2π, वेयर m इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, r इज़ द रेडियस एंड h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 फिक्स है, एंड पाई इज़ अगेन अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 3.14 फिक्स है। ठीक है, और अगर हमें एनर्जी निकालनी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की इन एन ऑर्बिट, तो जिस भी शेल की एनर्जी निकालनी है वो n से रिप्रेजेंट होगा, एंड ई एन इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² अपॉन n² जूल पर एटम। फिर उसने रेडियस का भी फॉर्मूला दिया था। अगर हमें किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो उसके लिए रेडियस का उसने फॉर्मूला दिया था कि RN इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4π² me² z। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन में ये इसमें बताया ना
आपका एनर्जी में ये 2 पाई स्क्वायर Me4 Z स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, ऐसे ही रेडियस के लिए भी होता है, विच आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, उसकी आपको ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ, आपको याद नहीं रखना। आर के लिए जो फॉर्मूला डिराइव किया गया था वो था N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर Me स्क्वायर Z, जिसमें सब चीज़ें कॉन्स्टेंट थी। एन तो हमारा नंबर ऑफ शेल था जो किसी भी पर्टिकुलर शेल के लिए कांस्टेंट था, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई की वैल्यू फिक्स है, मास फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, और एटॉमिक नंबर भी पर्टिकुलर हाइड्रोजन के लिए तो फिक्स ही है। तो जो उन सबको वैल्यूज़ उनकी रख कर जो हमारे पास वैल्यू आई वो कितनी आई, 0.059 N स्क्वायर अपॉन Z। अगर हम आर्मस्ट्रॉन्ग में रेडियस निकालना चाहते हैं तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला 0.059 N स्क्वायर। N मतलब कौन से शेल का रेडियस हमें निकालना है, फर्स्ट 1 2 3 4 5, तो जिसका भी निकालना है उसका नंबर आ जाएगा N में। Z इज़ द एटॉमिक नंबर, कि किस एटम की हम बात कर रहे हैं, लाइक हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो इट्स ऑप्शनल, ठीक है। अगर हम पिकोमीटर्स में निकालना चाहते हैं रेडियस, पिकोमीटर्स में, तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.059 के बजाय R इज इक्वल टू 52.9 N स्क्वायर अपॉन Z, ठीक है। अगर हम नैनोमीटर में निकालना चाहते हैं, नैनोमीटर में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.0529 0.0529 इंटू N स्क्वायर अपॉन Z, वो हमारा किस में हो जाएगा, नैनोमीटर्स में। तो डिपेंड करता है कि हमें रेडियस किस में निकालना है। यूजुअली हम जो रेडियस निकालते हैं वो पिकोमीटर्स में निकालते हैं, तो ज़्यादातर हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ 52.9 इंटू N स्क्वायर अपॉन Z। हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52.9 इंटू 1, एंड अगर हम फर्स्ट शेल की निकाल रहे हैं इंटू 1 अपॉन 1 दैट इज़ 52.9। अगर हम हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी निकाल रहे हैं तो 52.9 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर दैट इज़ 105.8 पिकोमीटर्स। तो इस तरीके से जिस भी ऑर्बिट या जिस भी शेल की हमें एनर्जी निकालनी हो वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी हम एंगुलर मोमेंटम वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NH अपॉन 2 पाई MR, है ना, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ शेल, H इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू फिक्स है, अपॉन पाई इज़ कांस्टेंट, M इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.10939 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स। हम सिंपल इसको 9.1 भी ले सकते हैं, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स। और R रेडियस हम गिवन होगा हमें क्वेश्चन में, कोई एक चीज़ तो गिवन होगी ना, तो उसके बेस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें रेडियस कैलकुलेट करना होगा, एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी। तो बोहर ने इन सब के लिए फॉर्मूलाज दिए, इन सब की वैल्यूज़ को उसने फिक्स कर दिया। एक्चुअली बोहर के अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में घूमता है उनका रेडियस फिक्स है, उनकी वेलोसिटी फिक्स है, उनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स है, उनका एनर्जी भी फिक्स है, उसने सबको क्वांटाइज्ड कर दिया, है ना। अब देखो क्या है, अब ये क्या है कि अब क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन ये आया कि जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा गया तो उसमें हमें साइमल्टेनियस लाइंस नज़र आई बहुत सारी ना एक साथ, और ये बोला गया कि हाइड्रोजन के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल में तो इतनी सारी लाइंस कैसे नज़र आ रही हैं। तो उसके लिए ये हम सामने देखते हैं, एक्सपेरिमेंट है ये हमारे पास कि कैसे हमें बहुत सारी लाइंस नज़र आ रही हैं। ये जो सबसे नीचे का जो लेवल है दैट इज़ N=1, जो सबसे न्यूक्लियस के पास है उसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और जितना ऊपर जाता रहता है N=2, ये भी एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई। N=3 अगर वहाँ जंप करता है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, N=4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट, N=5 फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, इस तरीके से ये होता है। इन सब की एनर्जी फिक्स है, देखो ये कैलकुलेट की गई है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ एनर्जी जो हमने अभी बोला था, क्या था, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, तो हाइड्रोजन की एनर्जी के लिए फर्स्ट अगर हमें शेल की एनर्जी निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होगा, 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 1, तो कितना आ गया हमारे पास, फर्स्ट शेल के लिए हमारे पास तो उतना ही रहेगा माइनस, इन्होंने किलो जूल पर उसमें लिया है, किलो जूल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, -13.2 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला निकाल लिया, ये सारी एनर्जीज फिक्स हैं। अब एक स्टेट से एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए,
वो हम निकाल सकते हैं। लाइक E1 से E2 में अगर उसे जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, E2 माइनस E1, जितनी भी आएगी डेल्टा E वो हमारी एनर्जी होगी। अगर सेकेंड यानी E2 से सेकेंड वाले शेल से थर्ड वाले शेल में जंप करना चाहता है इलेक्ट्रॉन, तो कितनी एनर्जी चाहिए उसको, -145.92 माइनस 328.32। एनर्जी जो है वो हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इतनी एनर्जी उसे चाहिए एक से दूसरे में जाने के लिए। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में भी जंप कर सकता है और फर्स्ट से डायरेक्टली थर्ड में भी जंप कर सकता है, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी। सेम वे वो जब वापस आएगा तो वो फिफ्थ से फोर्थ में भी आ सकता है, फिफ्थ से थर्ड में भी आ सकता है, फिफ्थ से सेकंड में भी, और फिफ्थ से डायरेक्टली फर्स्ट लेवल पे भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है पहले फिफ्थ से फोर्थ में जाए, फिर फोर्थ से थ्री में जाए, थ्री से टू में जाए, टू से वन में जाए। तो क्योंकि वो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स पर एक साथ जंप कर सकता है, इधर से उधर, उधर से इधर, तो बहुत सारी लाइंस हमारी बन सकती हैं, बहुत सारी एमिशन लाइंस हमारी बन सकती हैं। तो इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा, क्या फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए? तो उसके लिए हमें एक वैल्यू दिया गया, एक फॉर्मूला दिया गया कि नंबर ऑफ एमिशन लाइंस इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेयर n2 इज़ मोर देन n1। n1 क्या है हमारा, दैट इज़ द लोअर वैल्यू ऑफ शेल, एंड n2 क्या है, हायर वैल्यू ऑफ शेल। तो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस अगर हमें निकालनी है तो दैट इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, n2 माइनस n1 एंड ब्रैकेट में ले लेंगे, एंड देन n2 माइनस n1 प्लस 1/2। तो इसी फॉर्मूला से हमने डिराइव कर लिया उसे। तो बेसिकली ना हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, n माइनस 1/2। यानी अगर हमारा इलेक्ट्रॉन्स फिफ्थ लेवल पर है, ठीक है, और उसे जाना कहाँ है, उसे नीचे आना है ग्राउंड स्टेट पर, तो n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, 5 इंटू 4/2। यानी फिफ्थ से अगर वो ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है, फिफ्थ वाले एनर्जी लेवल से अगर वो ग्राउंड स्टेट पर सीधा आ रहा है, तो वो 10 स्पेक्ट्रल लाइंस बनाएगा, 10 स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे स्पेक्ट्रम में नज़र आएंगी। इसी तरीके से अगर आपको वो बोलता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन एट प्रेजेंट फिफ्थ वाले शेल पर है, फिफ्थ लेवल पर है, और उसे से सेकेंड शेल पर आना है, तो आ रहा है वो, तो कितनी लाइंस बनेंगी, कितने स्पेक्ट्रम शो करेगा लाइंस। तो क्या करेंगे हम, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, तो इट विल बी 5 से उसे आना है कहाँ पर, ग्राउंड स्टेट पर। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, सेकेंड वाले पर आ रहा है ना, तो 5 माइनस 2 एंड देन 5 माइनस 2 प्लस 1, तो 5 माइनस 2 मतलब 3, एंड 5 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12/2, 6, तो 6 एमिशन लाइंस उसकी बनेंगी। क्लियर। ये जो फॉर्मूला है डायरेक्टली यहाँ पर n माइनस 1 लिख दिया है मैंने, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ एमिशन लाइंस ब्रैकेट स्टार्ट n2 माइनस n1 ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट n2 माइनस n1 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज/2। ठीक है, तो n2 जो है वो क्या है, हायर लेवल है, और n1 क्या है हमारा लोअर लेवल। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं कि कितनी एमिशन लाइंस जो है वो स्पेक्ट्रम में शो करता है, जो वो किसी एक पर्टिकुलर लेवल से दूसरे पर्टिकुलर लेवल में आता है। क्या है ये स्पेक्ट्रम और क्या है ये स्पेक्ट्रम लाइन, ये हम सेकेंड वीडियो में जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था, वो नहीं बता पाया था कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस ही क्यों नज़र आती हैं, कुछ पर्टिकुलर कलर्स ही क्यों नज़र आते हैं, 7 के 7 कलर्स क्यों नज़र नहीं आते। तो ये हम बाद में स्टडी करेंगे इसके बारे में, लेकिन इसने बता दिया था बोहर ने। बोहर का ये एक बहुत बड़ा सक्सेस था एक्चुअली, कि उसने बता दिया था कि जब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के ऊपर हमने सपोज एक कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर गैस है, हाइड्रोजन गैस, और हम दूसरी साइड से उसके ऊपर लाइट डाल रहे हैं, तो जब लाइट डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो वो 7 कलर्स यानी रेनबो के सातों कलर्स में डिवाइड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा ज़रूरी क्यों नहीं है, क्योंकि जब हाइड्रोजन एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है तो वो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सारी एनर्जी को वो एमिट नहीं करता। अब हमने देखा है कि विबग्योर यानी कि हमारे पास बहुत सारे कलर्स होते हैं, हर कलर की एक एक फ्रिक्वेंसी होती है, हर कलर की एक एक फ्रिक्वेंसी होती है, दैट इज़ इक्वल टू h म्यू।
अभी मैंने आपको बताया था ना एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, जितनी वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए यूज़ करता है। तो इसी तरीके से जो फ्रिक्वेंसी होती है हमारी दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू एच म्यू। तो एच म्यू जो है उसकी एनर्जी है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, और वो क्या करता है उसका उतनी एनर्जी को जब लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो वो सपोज उसने वॉयलेट कलर की जो एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया उसने एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए, तो जो उसका स्पेक्ट्रम है उसमें वॉयलेट कलर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उस एनर्जी को तो वो एब्जॉर्ब कर चुका है, एमिट नहीं करा। क्योंकि कोई भी कलर कब नज़र आता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब वापस आता है तो एनर्जी एमिट करता है। तो उसने क्या बोला कि कोई ज़रूरी नहीं है ना कि वो फिफ्थ से डायरेक्टली फर्स्ट लेवल में ही आए। अगर वो फिफ्थ से ग्राउंड लेवल पर आ रहा है तो वो सारी एनर्जीज़ को एमिट करेगा, लेकिन हो सकता है वो फिफ्थ से फोर्थ वाले लेवल पर आ रहा है, फोर्थ से थर्ड वाले लेवल पर आ रहा है, तो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी को, कुछ पर्टिकुलर कलर्स की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके रखेगा और कुछ पर्टिकुलर कलर्स की एनर्जी को वो एमिट करेगा। तो जिन एनर्जीज़ को वो एमिट करेगा स्पेक्ट्रम में हमें सिर्फ वही कलर नज़र आएंगे। इस वजह से जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, यानी उसमें सातों के सातों कलर्स नज़र नहीं आते, कुछ कुछ कलर्स नज़र आते हैं और कुछ कुछ कलर्स नज़र नहीं आते। तो ये चीज़ उसने एक्सप्लेन की, जो कि उसका एक बहुत बड़ा सक्सेस था, जो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। रदरफोर्ड बेसिकली दो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वन इज स्टेबिलिटी जो उसने एक्सप्लेन कर दी, उसकी शेल की एनर्जी को फिक्स कर दिया बोहर ने, तो इसलिए स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हो गई। दूसरी बात वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों है, कुछ कुछ लाइंस ही क्यों नज़र आती हैं। तो ये बात भी उसने एक्सप्लेन कर दी कि जब हाइड्रोजन किसी एक लेवल से, किसी एक शेल से दूसरे शेल में जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी एनर्जी को एमिट करे, कुछ एनर्जी को, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके रखता है और कुछ को वो एमिट करता है। तो जिस कलर की एनर्जी को वो एमिट करेगा उस एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही कलर हमें नज़र आता है, इसलिए कुछ कुछ कलर्स हमें नज़र आते हैं और कुछ कुछ कलर्स हमें नज़र नहीं आते। या आप लोग जब डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्पेक्ट्रम समझाऊंगी आप समझ जाओगे। अच्छा, इतना सब कुछ सक्सेस था, उसने हमें रेडियस दिया, उसने हमें वेलोसिटी दी, उसने हमें एनर्जी बताई, बट फिर भी बोहर के भी कुछ डिफेक्ट्स रह गए थे। अब क्या डिफेक्ट्स थे बोहर के? बोहर ने क्या बोला कि जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है एक एनर्जी ऑर्बिट से दूसरे एनर्जी ऑर्बिट में तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है ना, बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ दिस रेडिएशन अकर, कि वो ये जो रेडिएट करता है एनर्जी को ये क्यों करता है, कैसे पॉसिबल हो पाता है ये रेडिएशन, इसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंड थिंग उसने क्या बोला था कि जो हाइड्रोजन है वो, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइंस नज़र आती हैं, कुछ कुछ पर्टिकुलर कलर की लाइंस हमें नज़र आती हैं, लेकिन क्या बोला उसने, ये बाद में देखा गया कि जो स्पेक्ट्रम लाइंस हैं दैट हैज़ बीन थॉट टू बी अ सिंगल लाइन वाज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ सेवरल लाइन, कि ये जो एक सिंगल लाइन नज़र आती थी, जैसे वो बोल रहा था कि एक कलर नज़र आ रहा है, एक पर्टिकुलर कलर, एक पर्टिकुलर लाइन मतलब एक पर्टिकुलर कलर, तो ये एक लाइन नहीं है, ये भी एक्चुअली आगे फर्दर बहुत सारे लाइंस में डिवाइड हो जाता है। तो ये लाइंस में क्यों डिवाइड होता है आगे फर्दर, ये इसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। अच्छा, फिर बोहर ने क्या बोला था कि हाइड्रोजन, जैसे मैंने आपको बताया, वो सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बेसिकली एक्सप्लेन कर पाया, या हाइड्रोजन जैसे एटम्स जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो उनको वो एक्सप्लेन कर पाया। मल्टी इलेक्ट्रॉन्स जो सिस्टम था उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिनके अंदर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये भी उसका एक फेलियर था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ही फेल टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड एज ज़ीमैन इफेक्ट। क्या है ये कि व्हेन वी पुट एनी लाइन, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस हमें दिखाई दे रही थी उन लाइंस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक लाइन जो है वो फर्दर और बहुत सारी लाइंस में डिवाइड हो जाती है, वो आगे फर्दर स्प्लिट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, इसे ज़ीमैन इफेक्ट बोलते हैं। तो क्यों ये लाइन जो है फर्दर आगे स्प्लिट हो जाती है, ऐसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेम वे व्हेन वी पुट एनी लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भी हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो आगे फर्दर स्प्लिट हो जाता है बहुत सारी लाइंस में, उसे हम बोलते हैं स्पार्क इफेक्ट। तो स्पार्क इफेक्ट को भी स्टार्क इफेक्ट, तो स्टार्क इफेक्ट को भी वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। अच्छा, बोहर ने सजेस्ट किया था कि जो सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस हैं हाइड्रोजन एटम के, बट बाद में ये प्रूव हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो सिंगल प्लेन मोशन नहीं है, बल्कि वो
3 डायमेंशनल मोशन है, तो इस 3 डायमेंशनल मोशन को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये भी उसका एक फेलियर रह गया, ठीक है। उसके बाद बोहर ने क्या बोला था कि बोहर एज्यूम्स दैट इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इज लोकेटेड एट अ डेफिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग अराउंड इन द डेफिनेट वेलोसिटी, यानी उसकी वेलोसिटी भी जो है वो डेफिनेट है और मोमेंटम भी जो है वो डेफिनेट है। लेकिन हेजनबर्ग बाद में एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया जो इसके एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को, वो कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम तो बताया ही नहीं जा सकता, जबकि बोहर ने फिक्स कर दिया, उसको मोमेंटम भी फिक्स कर दिया, उसका वेलोसिटी भी फिक्स कर दी। तो जो बोहर का मॉडल था वो बाद के जो साइंटिस्ट आए हेजनबर्ग और डिब्रॉगली, उन्होंने जो अपने एक्सप्लेनेशन दिए, अपने जो एक्सपेरिमेंट्स दिए, उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसलिए ये भी उसका एक फेलियर हो गया। तो क्या क्या उसके फेलियर थे कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है उसमें जो लाइंस बनती हैं वो फर्दर आगे 2, 4, 3 लाइंस में क्यों डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात कि वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सिर्फ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ही वो एक्सप्लेन कर पाया था। दूसरा, वो जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड नेक्स्ट वो डिब्रॉय और हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी रिलेशनशिप का जो प्रिंसिपल उन्होंने दिया था और डिब्रॉय ने जो डुअल नेचर ऑफ मैटर बताया था उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये सारे फेलियर्स होने की वजह से अब हमें ज़रूरत पड़ी एक और मॉडल की, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till that you will learn all these formulas and I will give you the assignment. In that I will give you certain numericals in which you people are going to use these formulas. Students, ये बोहर का जो मॉडल है देखने में डिफ़िकल्ट लगता है, बिकॉज ऐसा लगता है यार ये क्या, एंगुलर मोमेंटम, रेडियस, ये वो। आपको ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, आपको सिर्फ उसके जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें याद करना है और उसके जो पॉस्टुलेट्स हैं उन्हें लर्न करके रखना है। पॉस्टुलेट्स आपको थ्योरी क्वेश्चंस में काम आएंगे एंड फॉर्मूलाज आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, दैट्स इट, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।